आपको मेरी आवाज दे रहा है क्या? हेलो अभिनव। ओ मैम। ओके चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ? शायद सबको दिख रहा हो ऐसा होप्स करेंगे। ओके तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अभिनव बाकी सबको म्यूट करो तो आवाज नहीं आएगा। थैंक यू। डेवलपमेंट ऑफ क्या हुआ था? फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या कहा है हम लोगों ने? डेवलपमेंट प्रोसेस को नाम दिया है मेगास्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक्टिवेट होगी और बाय व्हाट प्रोसेस? मियोसिस। दैट प्रोड्यूसेस क्या करेगा बताओ? मेगास्पोर। मेगास्पोर दैट इज सी हियर फर्स्ट मेगास्पोर मदर सेल। that first megaspore mother cell chromosome number are 2n मतलब diploid है. That is on what process? Meiosis. Divided into how many cells? 4 haploid megaspore. That 4 haploid megaspore arranged in a linear tetrad. Out of that 4, 3 are degenerating. See, that is they have function to provide nourishment to this fully developing megaspore. Now this megaspore which is fully developed, that goes first mitosis, means inside to that nucleus divides. That nucleus divide into 2 nuclei. So first mitosis is over and there are how many nuclei formed? After that, that 2 nuclei again go to next second mitosis. That second mitosis forms how many nuclei? 4 nuclei. So that 4 nuclei again go next mitosis, that is third mitosis, and it forms how many nuclei? 4 nuclei. And in that 4 nuclei, suppose there are 4, means total 8 nuclei converted into 4 nuclei are converted into 8 nuclei, and that 8 nuclei give formation of 8 cells. And that 8 cell structure in future is developed into female gametophyte, or that is called as a embryo sac. उसे क्या नाम दिया है? Embryo sac. Now see, out of that 8, 4 cells are present towards antipodal region and 4 are present towards where? Towards the micropylar region. Of whom? Of the ovule. So out of that 4 from antipodal region, one shift to the center. एक कहाँ पे आती है? Center में. Or from the lower, that is from micropylar end also, one shifted to the center. So now what happened? The 3 cells are remain as it is in antipodal zone, means in towards where? Towards the what we say, towards the basal end. Another one goes towards the micropylar end. So micropylar end forms 3 cell structure. That 3 cell structure is called as a egg apparatus. उसे क्या नाम दिया है? Egg apparatus. And that egg apparatus is made up of egg cell and synergid. And the two both which are shifted from two pole, from two region. So now that two pole shift combined with order to form what? Secondary nucleus. उनसे क्या form हुआ है? Secondary nucleus. So now this structure is called as the female gametophyte. So this topic is over. 4 marks topic is over. That process is called as a megasporogenesis. तो हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. मेगास्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ क्या कंप्लीट हुआ बताओ? फीमेल गैमेटोफाइट. और फिर ये एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये सब. तो इसमें एक अलग सा क्वेश्चन आ सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो. यहाँ पे लिखा है द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर is described as what? It is described as, that is called as a monosporic development. तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो. मोनोस्पोरिक क्यों कहाँ है? That is here only one megaspore is used. This one megaspore is used inside where? Inside the nucellus. So that is also called as endosporic. तो नीचे देखो लाइन में दिया है female gametophyte is a colorless एंडोस्पोरिक एंड इज कंसील्ड इन. कंसील का मीनिंग क्या होता है? देखो जैसे कोई सावले रंग की लड़की होगी तो वो फाउंडेशन मेकअप लगाएगी चेहरे पे तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए. तो कंसील का मतलब तुमचा आवाज नाही येत आहे. सॉरी स्क्रीन नाही दिसत आहे. नहीं दिख रहा है, क्लियर है. आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम होगा. देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो the monosporic development in angiosperm, the development of female gametophyte is endosporous. Endosporous मतलब क्या हो रहा है? Inside the megaspore development is takes place.
सो दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पोरिक, इसलिए उसे नाम क्या दिया है, देखो एंडोस्पोरिक. सो दैट एंडोस्पोरिक मीन्स व्हाट, यहाँ पे दैट फीमेल गैमेटोफाइट इज कवर्ड इन, स्टोर्ड इन और कंसील्ड इन. कंसील का मतलब मैंने क्या कहा, सपोज चेहरे पे पिंपल होगा, कुछ पैचेस होंगे, तो वो छुपाने के लिए कुछ हम लगाएंगे ना क्रीम, हेलो मैम, कंसील. हाँ यस. स्क्रीनचा प्रॉब्लेम येतोय. ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी दिख रहा है क्या, थोड़ा ऊपर करो, ब्लर दिसतंय अभी दिख रहा है, sometimes. ब्लर दिखती है. ओके, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, वेट फॉर मिनट. कालची सेटिंग केली तीच आहे मॅम. हो यस. अब देखो, अब है क्लियर. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. देखो, और नहीं हो सकता. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. ओके, तो दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इन whom, अभिनव आ रहा है अभी. हो मॅम, थोडंसं हाँ, ओके, नेटवर्क ठीक मुळे है. पण जात असेल ते. हाँ ठीक है, दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, सो कॉल्ड एज ए एंडोस्पोरिक. तो देखो, ये फुल 4 मार्क्स के टॉपिक पे सबको ध्यान देना है. तो कौन सा फुल 4 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना, डेवलपमेंट ऑफ कौन सा हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट. ये टॉपिक फुल कंप्लीट हुआ है. तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनोस्पोरिक मीन्स व्हाट एंड एंडोस्पोरिक मीन्स व्हाट. तो एंडोस्पोरिक का मीनिंग क्या आएगा, दैट इज डेवलप इनसाइड द न्यूसेलस, दैट इज सो इट इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पोरस, इसलिए उसे नाम क्या दिया है बताओ, एंडोस्पोरस. ओके, so now after that next topic, that topic is called as a pollination. उसके आगे का जो next topic आएगा वो है pollination. तो pollination में start करती हूँ. So what is meaning of pollination? Pollination means transfer of pollen grain. क्या transfer होते हैं, pollen grains. तो pollen grain from कहाँ से transfer होते हैं, from anther to stigma. तो वो जाएंगे कहाँ पे, anther to stigma. So मैं एक चार्ट के फॉर्म में आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, pollination मीन्स ट्रांसफर ऑफ, क्या कहा मैंने, पोलन ग्रेन. कहाँ से होंगे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होंगे. तो एक स्कीमेटिक चार्ट है. तो इसमें पोलिनेशन बाय मेन 2 एजेंट से होते हैं. वन दैट इज कॉल्ड एज ए अबायोटिक एजेंट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ए बायोटिक एजेंट. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक मीन्स व्हाट, दैट इज विदाउट, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन लिविंग मटेरियल इज यूज्ड. So non-living material is used, that non-living material is wind and other one is water. So here by wind the pollination is takes place, that is called as a anemophily. उस pollination को नाम दिया है anemophily. और that pollination is called as found in the plant, that plant example is maize. Other one is hydrophily. Hydro का meaning होता है water and phily means what, attraction, affinity, love. जैसे उस चीज का बहुत ही अट्रैक्शन होना. तो उस पोलन ग्रेन को किससे एफिनिटी रहेगी, वाटर से एफिनिटी रहेगी. सो दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोफिली. तो मोस्टली द फ्लावर्स आर प्रेजेंट बिलो द वाटर, बट समटाइम्स द फ्लावर्स आर प्रेजेंट अबव द वाटर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल लोटस, तो लोटस में फ्लावर फुल्ली वाटर के अबव होता है. तो वहां पे किस तरह का पोलिनेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे पोलिनेशन में भी 2 टाइप्स आते हैं वाटर के, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली. हाइपो का मीनिंग है बिलो, हाइपो मतलब हाइपोटेंशन बोलते हैं हम लोग, अरे तू मुझे कितना टेंशन देती है, हाइपर टेंशन मत कर. हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब अबव एंड हाइपो मतलब बिलो. एंड हाइपोहाइड्रो, हाइड्रो का मीनिंग आएगा वाटर. तो पोलिनेशन विच इज बिलो द वाटर, that is called as a hypohydrophily. So which is found in sea grass, Zostera. तो किसमें मिलेगा, ये वैरायटी नाम दिया है प्लांट का, वो बोल बोल के भी आपको याद होगा. क्लास में अभी आपके किसी स्टूडेंट्स के नाम नहीं मालूम थे मुझे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो जो कॉन्टेक्ट है उनके नाम मुझे याद आ रहे हैं.
तो जैसे अनस का याद आ रहा है, शंभवी का याद आ रहा है, सुमेधा का याद आ रहा है, अभिनव का याद आ रहा है। तो जो जो कांटेक्ट करते हैं, जो कम्युनिकेट हो रहे हैं, तुम्हें याद होता है क्योंकि बाद में कैरेक्टर मालूम होता है ना हमें। तो वैसे ही यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली, इसका मतलब क्या आएगा बताओ? बिलो। बिलो, बिलो का एग्जाम्पल कौन सा दिया है? सी में ग्रास जो आता है, दैट सी ग्रास, और एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज ए जोस्टेरा। दोनों वही है, कॉमन नेम है जोस्टेरा का, सी ग्रास। Then epihydrophily, that is example is Vallisneria. So see here, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, अपार्टिक एजेंट से जो पॉलिनेशन हो रहा है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन द वाटर ओनली by biotic agent also pollination takes place, that is called as a entomophilus. तो entomophilus and anemophilus है। तो entomophilus का एग्जांपल क्या आया? लोटस। एंड एनिमोफिलस का एग्जांपल क्या आया? दैट इज कॉल्ड एज ए हेलोग्रास। एनिमो मतलब याद रखना विंड ही है, तो विंड से ही पोलिनेशन हो रहा है। तो ये एक अलग एग्जांपल्स दिए हैं, शायद ये आपको नीट के लिए या एमसीक्यू के लिए आएगा तो मोस्टली। फिर उसके बाद है बायोटिक एजेंट। तो पोलिनेशन बाय किससे होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? हम लोग तो जाके फ्लावर्स को बोल नहीं सकते ना कि इसके पोलन ग्रेन उसके ऊपर जा करके, तो हमें उस लिविंग एजेंट को ढूंढना पड़ेगा, कौन है जो प्लांट की फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मोस्टली देखो, बटरफ्लाई अट्रैक्ट होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, मॉथ अट्रैक्ट होता है, नहीं तो एक आध लार्वी होती है वो अट्रैक्ट होते हैं, या तो उसे खाने के लिए जाने वाली गोट रहेगी, शीप रहेगी, वो जाएंगे। तो जो वो गार्डन की कांटेक्ट में, फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे, वो पॉलिनेशन दिखाएंगे। सो दैट एजेंट आर कॉल्ड एज ए बायोटिक एजेंट। सो अपने बुक में जितने दिए हैं, थोड़ा बहुत मैंने एक आध दो ऐड किया है। तो बायोटिक एजेंट मतलब किससे आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहला एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली। पहला एग्जांपल कौन सा है? एंटेमोफिली। दैट पोलिनेशन इज बाय इंसेक्ट। एंटोस का मीनिंग होता है इंसेक्ट। और जैसे तुलसी फ्लावर आपने देखा है, वैसा ही एक प्लांट रहता है, उसके फ्लावर्स भी वैसे ही तुलसी जैसे आते हैं। उस प्लांट का नाम है साल्विया। तो एंटेमोफिली टाइप टाइप ध्यान रखना। हाँ देखो, फिली का मीनिंग मैंने क्या कहा था? अट्रैक्शन। तो एनिमोफिली का मीनिंग क्या कहा था मैंने? यहाँ पे विंड का अट्रैक्शन होगा, तो एनिमोफिली वर्ड आया। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड बोल रही हूँ? एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब किसका आ रहा है बताओ? इंसेक्ट का अट्रैक्शन। तो एंटेमोफिली इंसेक्ट से अट्रैक्ट होगा, ऑर्निथोफिली बर्ड से अट्रैक्ट होगा, काइरोप्टेरोफिली वो बैट से अट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद मेलैकोफिली स्नेल से अट्रैक्ट होगा, एंड सर्पेंटोफिली, सर्पेंटोफिली मतलब स्नेक से अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली स्नेक कहाँ पे रहते हैं? मतलब जिसमें ज्यादा फ्रेग्रेंस स्मेल आएगा, तो चंदन ट्री बोलते हैं हम लोग, चंदन के झाड़ पे स्नेक ज्यादा रहते हैं। तो सर्पेंटोफिली में स्नेक किससे, कौन से प्लांट में पॉलिनेशन करेगा? चंदन के प्लांट में। मेलैकोफिली मतलब स्नेल। तो स्नेल कौन से झाड़ पे दिखती है ज्यादा? आपने अलू देखा है? अळूची वडी करतात ना, तर अळूच्या झाडावरती, सुरणच्या झाडावरती वरती जे येणार ना फ्लावर, तो वो स्नेल उसके ऊपर मूवमेंट करेगी, तो पोलन ग्रेन को लेके जाएगी। सो दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ए मेलैकोफिली। फिर है कायरोप्टेरोफिली, मतलब बैट, बैट से पोलिनेशन होगा। बैट मतलब क्या कहेंगे? वटवा घुड़ मराठी में कहते हैं। तो वो प्लांट बहुत बड़ा रहेगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो कॉमन नेम है उस प्लांट का कदम्ब, मतलब कॉमन जो यहाँ पे महाराष्ट्र में यूज किया जाता है, टेक्स्ट बुक में वो ही एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद ऑर्निथोफिली, मतलब किससे होगा? बर्ड से होगा। तो उसका एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स मतलब, हाँ यहाँ पे बहुत जगह पे दिखता है, चिंचनी एरिया में भी लाल कलर के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स रहते हैं और फ्लेशी रहते हैं, फ्लेशी। लेकिन जंगल एरिया में, मतलब हम रास्ते से जाते आते हैं ना, तो रोड साइड एरिया में वो प्लांट दिखता है। तो कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगी। और एंटेमोफिली मतलब कौन सा कहाँ है? इंसेक्ट। तो बेसिकली ये एजेंट है कि जिसके वाया पोलन ग्रेन जाएंगे। लेकिन पोलन ग्रेन किसके पास जाते हैं या कैसे जाते हैं? तो पोलन ग्रेन जाने का रास्ता कौन सा है? कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया कि ये, एक मिनट, हाँ,
सपोज ये एक प्लांट है, ओके, तो इस प्लांट पे यहाँ पे आया लीफ, यहाँ पे आया लीफ ये, और यहाँ पे ड्रॉ किया हम लोगों ने फ्लावर, यहाँ पे भी फ्लावर है सपोज, ओके। अब क्या होगा, फ्लावर यहाँ पे दिखाया है इसने, ये स्टिग्मा स्टाइल, और यहाँ पे है ओवरी, और ये है सपोज एंथर। इसमें से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पोलन ग्रेन, ओके। अब ये पोलन ग्रेन किसके पास जाएगा, मूव टुवर्ड्स द स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन गया कहाँ पे बताओ, स्टिग्मा पे। अब जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया तो उसी फ्लावर में गया है ना, सो दिस पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ए सेल्फ पोलिनेशन। इस पोलिनेशन को क्या कहेंगे, सेल्फ। अब क्या हुआ, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे चला गया, आया, तो ये भी कौन सा पोलिनेशन हुआ, सेल्फ ही, क्योंकि मेल प्लांट जो है ना, मैंने वो एक ही पकड़ा है, तो दिस पोलिनेशन इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पोलिनेशन। सो पोलिनेशन on basis of receiving pollen grain by stigma of flower, मतलब वो pollen grain कौन रिसीव कर रहा है बताओ, स्टिग्मा ऑफ किसका, फ्लावर का। तो यहाँ पे pollination on basis of receiving is divided into how many type, two type, one is self pollination and other one is called as a cross pollination। तो सेल्फ पोलिनेशन को हम कहेंगे ऑटो, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा बोलते हैं हम लोग। तो ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ, ऑटोमेटिकली, और गैमी मतलब फ्यूजन। तो ऑटोगैमी इज नथिंग बट एक सेल्फ पोलिनेशन ही है, लेकिन वो एक ही फूल पे जा रहा है ना, इसलिए उसे नाम दिया ऑटोगैमी। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक ही कास्ट में मैरिज हो गया लेकिन दो अलग फैमिली में हुआ, तो उस प्रोसेस को आएंगे ऑटोगैमी। फिर उसके बाद गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी मतलब क्या, कास्ट एक है, फैमिली थोड़े अलग अलग है, ओके, तो टू डिफरेंट फैमिलीज में हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज ए गिटेनोगैमी। एग्जांपल इज कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मतलब भोपड़ा, पंपकिन बोलते हैं ना, पंपकिन, उसमें ये आता है। तो ऐसा क्यों होता है मैडम, टी प्लांट में ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी कुकुरबिटा में कैसे, सेल्फ पोलिनेशन ऐसा क्यों होता है, कुछ रीजन है क्या? तो यस, ये जो पी प्लांट है ना, इसका जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो ऐसे क्लोज स्टाइल में रहती है। मतलब क्या होगा, ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए लोअर पेटल, और ये रहेगा अपर पेटल। तो लोअर और अपर पेटल के अंदर ही कौन रह जाएगा बताओ, स्टिग्मा रह जाएगा। तो अंदर रहने की वजह से उस पोलन ग्रेन को बाहर जाने का स्कोप ही नहीं मिलेगा, तो नेचुरल पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में जाएगा। लेकिन जब गिटेनोगैमी कुकुरबिटा का पोलिनेशन आता है तो उसमें क्या होता है, एक ही पंपकिन का बड़ा सा क्या रहेगा बताओ, क्रीपर रहेगा, लेकिन उस क्रीपर में एक जगह पे एक फूल आएगा, दूसरी जगह पे एक आएगा, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे। आप आपके बोईसर एरिया में वो बॉटल गार्ड भी आता है ना, दूधी भोपड़ा बोलते हैं हम लोग उसे, तो उसमें भी ऐसा देखो कि बहुत सारे फ्लावर आते हैं, लेकिन उसमें एक फ्लावर रहेगा जिसका नाम रहेगा मेल और दूसरा फ्लावर रहेगा फीमेल। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, ओवरी जरूरी है ना, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, ओवरी जरूरी है। तो ये जो मेल फ्लावर है यहाँ पे, वो बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करके यहाँ पे फ्रूट फॉर्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पास गाइनोशियम ही नहीं है। तो नेचुरल है उसी क्रीपर पे जहाँ पे फीमेल फ्लावर रहेगा वहां पे वो मूव होगा। सो प्लांट इज सेम, मदर प्लांट इज सेम, बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, सो दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज, उस पॉलिनेशन को हमने नाम क्या दिया, गिटेनोगैमी। और यहाँ पे क्या है, मदर प्लांट इज सेम बट फ्लावर इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे फ्लावर भी एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे गिटेनोगैमी में दो डिफरेंट फ्लावर्स आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज ए गिटेनोगैमी। सो पॉलिनेशन का टाइप्स क्या कहे मैंने पहले, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मीनिंग क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम मदर प्लांट। उनका मदर प्लांट क्या होना चाहिए, सेम। नाउ नेक्स्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ए क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉलिनेशन का नाम क्या है,
क्रॉस। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स रहेंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये एक प्लांट ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे ये एक दूसरा प्लांट होगा और जिस दूसरे प्लांट पे और एक फ्लावर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे जाएगा, लेकिन उसका मदर प्लांट क्या है बताओ, डिफरेंट है। तो टू डिफरेंट मदर प्लांट है, सो दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ए क्रॉस पोलिनेशन। तो इट में भी विंड से हो सकता है, इट में भी वाटर से हो सकता है, इट में भी स्नेल से हो सकता है, इट में भी बैट से हो सकता है। तो मतलब पोलिनेशन को हमने ऑन बेसिस ऑफ किस पे डिवाइड किया है, रिसीविंग एजेंट एंड ऑन बेसिस ऑफ बायोटिक एजेंट एंड नॉन बायोटिक, मतलब अबायोटिक एजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि मदर प्लांट दो अलग हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब में दो मदर प्लांट है वहां तक ठीक है, लेकिन दो वैरायटी भी डिफरेंट होती है। तो इसका कॉमन एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब जास्वंद मराठी में कहते हैं, या तो चाइना रोज। और उसी फैमिली का दूसरा एग्जांपल है गॉसिपियम। गॉसिपियम मतलब कॉटन। तो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, क्रॉस पोलिनेशन के दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज अ जीनोगैमी और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। तो जीनोगैमी का मीनिंग क्या आएगा, देखो पपैया। तो पपैया झाड़ में आपने कभी देखा होगा गार्डन में कहीं और एक जगह पे, किसी से सुना भी होगा कि अरे वो पपैया प्लांट एक है ना, उसको पपैया नहीं आता, लेकिन दूसरे प्लांट्स को पपैया आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक ही मदर प्लांट सेम है, मदर प्लांट डिफरेंट है। वन प्लांट इज मेल प्लांट एंड अदर प्लांट इज फीमेल प्लांट। और दूसरा एक एग्जांपल आता है मेज में भी। आप मेज को गिटेनोगैमी में भी डाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि मेज आपने देखा है कभी, मतलब मक्का खाया होगा ना, मक्याचं झाड म्हणजे मेज। तो मेज का ये जो फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन होता है ना, ये यहाँ होता है नीचे, और इसमें से डंडी डंडी निकलती है, फिर आप उसका छिलका निकालते हैं और फिर वो मक्के को खाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऊपर देखेंगे ना, वो मक्के का झाड़ ग्रो होगा तो ऊपर भी बहुत सारे बंच ऑफ फ्लावर्स रहते हैं ऐसे, इसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे। तो इसमें दो फ्लावर है, वन अपर फ्लावर इज कॉल्ड एज अ मेल एंड लोअर इज कॉल्ड एज ए फीमेल। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए यहाँ से यहाँ, तो बाई चांस दूसरे प्लांट में भी जा सकते हैं ना। तो इसीलिए दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ए जीनोगैमी। उस पोलिनेशन को नाम क्या दिया है, जीनोगैमी। तो बेसिक एग्जांपल, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा इसका पपैया, क्योंकि पपैया के दो प्लांट ही अलग रहते हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। लेकिन मेज में कैसा होता है, मेज में एक ही मतलब प्लांट पे दोनों भी फ्लावर रहते हैं, तो मेज यहाँ पे भी आता है गिटेनोगैमी में। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, दो कैरेक्टर को मिक्स करना। अब एनिमल के एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर, मतलब लायन का फेस और टाइगर की बॉडी अगर ऐसा मिक्स हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइगर। लाइगर का मतलब एलाई मीन्स लायन एंड गर मीन्स टाइगर। तो ऐसा एक एनिमल साइंटिस्ट बना सकते हैं या हम बना सकते हैं, और इट्स मे बी प्रैक्टिकली पॉसिबल बाय प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके जैसे ही प्लांट्स में भी होता है, जैसे मैंने लायन और क्या कहा आपको, टाइगर। तो उसके जैसे यहाँ पे किस में होता है, हिबिस्कस में। हिबिस्कस का मीनिंग क्या कहा मैंने, चाइना रोज। एंड गॉसिपियम मतलब क्या कहा हमने, कॉटन। तो दो कैरेक्टर मिक्स होंगे, दो प्लांट में पोलिनेशन होगा, दो वैरायटी में पोलिनेशन होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो भी लेक्चर में है, मैं तो अभी नहीं देख रही हूँ, मैंने किसी और को बोला है प्रेजेंटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो रेगुलर है वो प्रेजेंटी मेंटेन कर रहे हैं, जो क्लास में अटेंड हो रहे, वो इस पोलिनेशन फैक्टर में आते हैं। लेकिन कोई कोई क्या करता है, लेक्चर अटेंड नहीं करता, यूट्यूब की लिंक भी नहीं देखता, नहीं तो कंप्लेंट करता है माइंड में, हाँ लेक्चर तो हमको दिखाई भी नहीं दिया, हमको सुनाई भी नहीं दिया। फिर वो जो भी हमें नॉलेज मिलना रहता है ना, उससे वो हट जाते हैं। और बेसिकली सबको एग्जाम देना है, अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो भी आपको 12th का एग्जाम देना है, और लेक्चर अटेंड किया तो भी 12th का एग्जाम देना है। क्योंकि हमारा बर्थ ही हुआ है तो हमको इस प्रोसेस से जाना ही है, हमको पढ़ाई करना ही है। तो प्लांट का भी यही हाल होता है, अगर प्लांट ने ये प्रोसीजर नहीं फॉलो की
तो प्लांट को कुछ और करना ही पड़ता है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं होगा नेचर में, एनवायरमेंट में। तो प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फॉलो करते हैं। तो देखो जो रेगुलर है, जो लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो डरेंगे ही नहीं। वो सामने ऐसे आएंगे कि हाँ मेरा तो प्रिपरेशन हो गया है, मैं अच्छे से मार्क्स लाऊंगा, और वो बहुत अच्छे से मार्क्स लाएंगे। और जो अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा वो माल प्रैक्टिस ढूंढेगा, हाँ मैं इसको मस्का कैसे लगाऊं, उसको मस्का कैसे लगाऊं, वो उसको कैसे अच्छे से बात करूं ताकि वो मुझे हेल्प करे। कोई लड़का रहेगा तो लड़की को अच्छा अच्छा बोलेगी, कोई लड़की इंटेलिजेंट रहेगी तो लड़का उसको अच्छा अच्छा बोलेगा, और कुछ करके उसे मार्क्स मिलाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये माल प्रैक्टिस का रूल होगा। या तो और कुछ क्या करेगा, तू मेरे घर पे आ जा, थोड़ा कुछ हेल्प करेगा, गिफ्ट देगा, कुछ ना कुछ करेगा ताकि दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो सेम लाइक दैट प्लांट भी क्या करता है, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, कुछ और प्रोसीजर को फॉलो करता है। क्या करने के लिए, पॉलिनेशन। तो उसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, क्योंकि उनको पॉलिनेशन तो करना ही है, बाहर तो जाना है, सरवाइव तो होना है। तो उनमें कुछ तो गड़बड़ है, उनके अंदर गड़बड़ है, इसलिए कुछ माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कौन सी माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रीवेंसेस दिखा रहे हैं? तो उसमें पहली कॉन्ट्रीवेंसेस है यूनिसेक्सुअलिटी। वो बेचारे यूनिसेक्सुअल है, मतलब उनके पास दोनों गैमेट नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है, इसलिए वो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, उसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ाया, मेज एंड पपैया। दूसरा एग्जाम्पल आया डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मीनिंग क्या होता है, ये तो नेचुरल आप एनवायरनमेंट में देखते हो। देखो डाइकोगैमी का मीनिंग क्या होता है, प्रोटैंड्री। मतलब कभी कभी, सॉरी हाँ, मतलब आप जिस एज के हैं उस हिसाब से मैं एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, या तो एंजॉयमेंट के लिए। कभी कभी क्या होता है, आप क्लास में एक साथ रहते हैं और बहुत, सपोज एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, ओके, इंटेलिजेंट है, अब उससे बात करने के लिए किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, वो लड़का हेजिटेट करता है, उसको लगता है मैं इस लड़की को हेल्प करूं। मैंने एक एग्जांपल सुना था, मैं आपको बताती हूँ। उस दिन मैं आपको कल बोलना भूल गई। वरुण बरनवाल है ना, वो सीटीएस अपने स्कूल में से ही, उसने क्या किया, आईएएस का एग्जाम दिया। मैंने आपको ये क्यों बोला था, वो जब इंटरव्यू दे रहा था सामने, तो उसकी आंखों से रोना आ रहा था। परसों मैंने जब वो इंटरव्यू देखा तो उससे हमने बात भी किया है, लेकिन तो भी आपको इंस्पायरिंग के लिए वो इतना रो रहा था, बोल रहा था मेरी दीदी है, उसकी दीदी है ना, वो ट्यूशंस लेती थी और वो पढ़ाई करता था। तो इसलिए मैंने ग्रुप पे भेजा था कि यू मे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन एरिया, आपके लोकल एरिया से ही कोई आईएएस हुआ है तो आप वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इफ यू नो, आप किसी ने देखा हो तो ग्रुप में डालो, तो बाकी लोगों को भी इंस्पायरिंग लगेगा। मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी बॉडी पे वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन, पापा का 10th में डेथ होना, फिर उसके बाद पैसा ना होना, तो भी कैसे पढ़ाई किया। सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई। तो ये क्यों है, फॉर स्टडी के लिए। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, सपोज कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये दूसरा एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा सुना था 2 दिन पहले ही। इंजीनियरिंग में मोस्टली क्या रहते हैं, ज्यादा करके बॉयज एडमिशन लेते हैं, तो गर्ल्स बहुत कम एडमिशन लेती है ना। तो क्या होता है, एक लड़की बहुत दिखने में सुंदर रहती है, वो एडमिशन लेती है, लेकिन इंजीनियरिंग में जब हम जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा रहता है। तो उसमें सपोज अगर हमने इलेक्ट्रिकल कौन से इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग लिया है, तो इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट को ना खुद से घसना पड़ता है और उसको क्यूब फॉर्मेशन में वगैरह बनाना पड़ता है। तो सारे बॉयज, एकदम एक लड़का भी बहुत इंटेलिजेंट रहता है, तो वो लड़की को ना वो घसने का काम नहीं करना रहता, वो क्यूब प्रैक्टिकली बनाना नहीं रहता। तो वो लड़की क्या करती है, ओ माय गॉड मुझसे तो ये बनेगा ही नहीं, ऐसे कुछ स्टाइल फॉर्म में वो कुछ बोलती है। तो वो जो लड़का इंटेलिजेंट है ना, वो उसको, उसके लिए अच्छा, मतलब फीलिंग आती है अरे इससे बनेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से वो खुद अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो मैं ये एग्जांपल किसके लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, जस्ट हाउ प्लांट्स शो दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर। तो प्लांट्स कैसे दिखाते हैं, देखो डाइकोगैमी, डाई मतलब 2 और को गैमी, गैमी मतलब क्या, गैमेट्स। तो 2 गैमेट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रोटैंड्री, प्रो मीन्स पहला एंड एंड्री मीन्स एंड्रोएशियम। तो जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा तो नेचुरली वो वेट करेगा ना गाइनोशियम के लिए कि गाइनोशियम कब मैच्योर होगा, और अगर गाइनोशियम मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, पोलिनेशन ही नहीं होगा।
तो वो कॉन्ट्रीवेंसी आई प्लांट में। और दूसरी कॉन्ट्रीवेंसी है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या आता है, गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा, और प्रोटेंडर का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। कुछ तो माल प्रैक्टिस कर रहे, कुछ कोशिश कर रहे, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर प्रीपोटेंसी, उसका एग्जाम्पल है एप्पल। फिर हेटेरोस्टाइली, दो स्टाइल एक ऊपर नीचे हो जाएगा। स्टाइल आपको मालूम है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो सपोज एपोकार्पस है, कार्पेल फ्री है, तो स्टाइल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो नेचुरल है, पोलन ग्रेन को गड़बड़ हो जाएगी। तो उस टाइम में कैसा फर्टिलाइजेशन, उस टाइम में पोलिनेशन कैसा होगा। सो दैट इज हेटेरोस्टाइली विच इज फाउंड इन प्राइम रोज। वो किस में मिल रहा है, प्राइम रोज में। फिर क्या है, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी वो कैलोट्रोपिस में, रुई रुई बोलते हैं ना, उसमें है। और फिर कोई क्या करता है, फर्टिलाइजर बनेंगे तो भी चाहिए, साइंटिस्ट देख लेंगे क्या करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी। अपने ह्यूमन बींग्स में ऐसा आता है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या, कभी कभी बर्थ ही नहीं होती, चाइल्ड ही नहीं होता, तो वो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और अगर नहीं भी हुआ तो फिर अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड को। सो दैट प्रोसेस, वैसे ही प्रोसेस आया सेल्फ स्टेरिलिटी। तो पूरा का पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है ना, मैंने इन शॉर्ट ये चार्ट में, और इवन इस चार्ट, ये चार्ट मैंने आपको कॉलेज मतलब कि नोट्स में भेजा है, तो अब टेक्स्ट बुक वाइज थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप बहुत सिंसियरली सुन रहे हैं, मालूम नहीं सुन रहे हैं कि आ रहा है समझ में, आई डोंट हेलो नो। मैम, हाँ बोलो। लास्ट 5 मिनट्स। ओह, अभी क्या करेंगे, 5 मिनट्स है, चलो ठीक है। आप लोग हाँ 1 मिनट देखो, जो भी 5 मिनट्स है उसमें भी जो होगा, अगली बार हम ज्यादा टाइम 10 मिनट्स देते हैं बात करने के लिए। अभी देखते हैं, देखो ये मैंने टॉपिक क्या कंप्लीट किया, देखो पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन, ये पैरा है ना, इसमें वही दिया है, पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा, एंथर टू स्टिग्मा बाय एजेंट से होगा। ये है पेज नंबर 5 1.6, ये हो गया। फिर उसके बाद इगो हाँ, उसके बाद देखो हेडिंग है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। देखो दिख रहा है क्या, ऑटोगैमी सेल्फ पोलिनेशन, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। फिर ऑटोगैमी के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जीनोगैमी, मिला क्या, जीनोगैमी दैट इज कॉल्ड एज ए क्रॉस पोलिनेशन। तो आप ये जरा पढ़ लो। फिर उसके बाद कौन सा, अबायोटिक एजेंट, और कौन सा है, बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट बाय किससे आया, पोलिनेशन बाय किससे है, विंड। मैं कल इसके शॉर्टली कैरेक्टर्स बताती हूँ, उस प्लांट में क्या कैरेक्टर आते हैं कि जिसकी वजह से वो कौन सा पॉलिनेशन दिखाएगा, विंड पॉलिनेशन। ओके ठीक है, इतना तो हो गया है। अभी आप मुझे बोलो किसको, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर्स करो। हाँ, अनम्यूट करना अपने आप को। व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिसीविंग एजेंट, ऑन बेसिस ऑफ एजेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एजेंट, अगर किसे आया तो। बायोटिक एंड अबायोटिक। हाँ, बायोटिक एंड अबायोटिक, शाबाश। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन का मीनिंग क्या आएगा, फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स। हाँ एक्सेट्रा। गिव मी ए साइंटिफिक नेम ऑफ एनी टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन। गुड, any scientific name, for example malacophily is by whom, one is right, entomophily, this is pollination by whom, entomophily means Malacophily is for snails and हाँ entophily is for bird insects. insect, entomophily is for insect। तो pollination by bird is, Pollination by bird is ornithophily. very good, ornithophily, good, shabash। On basis of receiving agent, on basis of receiving nahi, on basis of receptive stigma, pollination are divided into two types. What are that two types? On basis of Receptive stigma, pollen grain transferred to the stigma, so on basis of receiving stigma, or on basis of transfer of pollen grain. Self and cross, very nice। Self pollination is divided into again two types. What are that two?
Autogamy and heterogamy. Shabash, good. And cross pollination is divided into? Cross pollination is divided into? No, that is the auto written word. I want another answer. Cross pollination is divided into? See, your textbook is in your hand now. सब लोग देख सकते हो. Hybridization and और कौन सा आएगा? Xenogamy. Very good. Xenogamy. तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग आपको क्या समझा? Pollen grain of one flower gets deposited on stigma of another flower of different plant. वेरी गुड. 2 डिफरेंट प्लांट या 2 डिफरेंट वैरायटी बोलो तो 2 डिफरेंट प्लांट बोला ना तो कभी कभी वो जीनोगैमी भी हो जाएगा. तो 2 डिफरेंट वैरायटी आएगा. ओके. और 2 डिफरेंट प्लांट बोला तो हम क्या लेंगे उसको? जीनोगैमी लेंगे. क्या लिख रहे हैं हमें इतना दिख नहीं रहा है. ओके. मतलब समझ में आया. और अभी मुझे बताओ ऑटोगैमी का एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी? शाबाश, गुड. अच्छा लग रहा है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. मतलब आपको वेवलेंथ बायोलॉजी की कनेक्ट हो रही है. टाइम कितना रह गया अभी नाउ? मैं आगे करूँ क्वेश्चन कंटिन्यू या आज मैं नोट्स भेज रही हूँ क्लास पे. वो नोट्स भी नोट डाउन करो प्लीज आप लोग. ओके तो प्लीज सब लोग नोट्स भी नोट डाउन करेंगे. आ रहा है क्या? हाँ मैम आ रहा है. हाँ. आप और बोलो, कुछ बोलना चाहते हो तो. डायग्राम की थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग. मेल गैमेटोफाइट का, ओव्यूल का, फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का. और आज जो मैंने पोलिनेशन का टॉपिक पढ़ा है ना वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक एक बार पढ़ लो. सब लोग पढ़ना स्टार्ट करो. रीडिंग स्टार्ट करेंगे आप लोग. पेज नंबर 9 तक है वो. ओके. आज क्लियर हुआ क्या? थोड़ा दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया ना? स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम, बाद में फिर ठीक हो गया. ओके ठीक है. और कोशिश करेंगे अच्छा करने की. मॅम फोन क्रॉस ठेवलेला आहे. थोडासा क्रॉस ठेवलाय कारण की ते लाईट ऍडजस्टमेंट साठी. ओके चालेल. बाकी बरोबर आहे सगळं. ओके ठीक है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. मैं लिव नाउ. थैंक यू मैम. अटेंडन्स आली आहे का? चॅट मध्ये रिप्लाय द्या मला प्रायव्हेट मध्ये.